یہ جو کہہ رہے ہیں نا ہم اس کو جیل میں رکھیں گے، یہ رکھ کے دکھائیں اور اس کیس میں موجودہ وزیر اعظم صاحب گڈ بائی کرتے ہوئے بیٹھ جائیں گے۔ اور یہ جو بنی ہوئی ہے پنجاب حکومت، یہ بھی دڑم تختہ ہونے والی ہے۔ اور یہ جو عدلیہ کو دھمکیاں دے رہے ہیں 13 تاریخ میرے خیال میں اس دھمکیوں کا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل ڈاکٹر عمر فاروق اسٹرالوجی۔ دوستو سب سے پہلے میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں آج کی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے کہ اگر ہماری کوئی بات اندازہ ہمارا درست ہوتا ہے، یہ سب اللہ کی کرم نوازی ہے، اس کا لاکھوں احسان ہے کہ اس نے اس قابل سمجھا اور ہمیں کوئی بات سمجھا دی۔ باقی میں نے پہلے بھی عرض کیا، اب بھی عرض کیے دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے، اس کی کرم نوازی ہے یا اس کے جو فیصلے ہیں، وہ ایک مخلوق اپنے مالک کے فیصلے نہیں جان سکتی۔ اللہ کے فیصلے قوی ہیں اور غالب ہیں۔ ہمارا چھوٹا موٹا ڈیٹا کلیکشن کا علم ہے، جو ہم جانتے ہیں وہ بیان کرتے ہیں دوستو۔ تو ویڈیو کے پہلے حصے میں آپ سے عرض کرتا چلوں کہ میں نے جب عرض کیا تھا کہ عمران خان صاحب کا ذائقہ بہت سٹرونگ ہو رہا ہے، انٹرنیشنل لیول پہ ان کو جو پذیرائی حاصل ہوگی، ان کی کامیابی اور ہوگی، میں نے یہ بھی کہا تھا کہ وہاں کے جو لوگ ہیں وہ عمران خان صاحب کے حق میں باتیں کریں گے، اور وہ عمران خان کے لیے نہیں، اپنا قد کاٹ بڑا کرنے کے لیے باتیں کریں گے۔ آپ دیکھیے صدر ٹرمپ پہ حملہ ہوا، اس کے بعد ان کی جو لینگویج ہے وہ چینج ہو گئی، سیم وہی باتیں انہوں نے شروع کر دیں جو عمران خان صاحب اپنے جلسوں میں کرتے تھے، اور ان کی جو باتیں ہیں وہ ساری وہی ہیں جو عمران خان صاحب کرتے تھے، بلکہ ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے عمران خان صاحب کی باتیں وہ ٹرانسلیٹ کر رہے ہیں۔ میں نے پہلے آپ سے عرض کیا تھا کہ خان صاحب کا ذائچہ پیدائش بہت سٹرونگ ہے، ان کے ذائچے میں جو سیارگان کی پوزیشن ہے وہ بڑی سٹرونگ ہے، جس چیزوں کی ان کو ضرورت پڑے گی اللہ تعالیٰ غیب سے انہیں عطا فرماتے رہیں گے۔ اور دوستو جب میں نے کہا تھا کہ یہ عمران خان صاحب کا ذائچہ پیدائش اتنا سٹرونگ ہے، یہ آنے والے 10 سال وزیر اعظم پاکستان رہیں گے، تو لوگوں نے بڑا اس میں باتیں کی، کئیوں نے کہا جی بس جی عمران خان ختم، پارٹی ختم، ڈیل ہو گئی۔ آپ نے بھی لوگ دیکھے ہوں گے، وہ جا رہے ہیں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ بات یہ ہے کہ جو میں نے عرض کیا تھا کہ عمران خان صاحب کے ذائچے میں جو سب سے طاقتور ستارہ مریخ ہے وہ ان کے پہلے خانے میں موجود ہے، اور وہ دلیر آدمی ہیں، بزدلی ان کو چھو کر بھی نہیں گزری، بلکہ بزدل جو تھے وہ تو اچھا ہوا خان صاحب کو چھوڑ کے بھاگ گئے ہیں۔ بزدل آپ نے دیکھا نہیں، سارے بزدل جو جتنے بھی تھے ان کے ساتھی بنے تھے، ہواری بنے تھے، سب بھاگے ہیں۔ وہ جیسے جیسے انہوں نے پارٹی چینج کی، میں نے آپ سے عرض کیا تھا، سب سے پہلے جہانگیر خان ترین صاحب نے ایک پارٹی بنائی، میں نے کہا جناب آج نحس ترین دن ہے، یہ پارٹی چلے گی نہیں، میری ویڈیو اٹھا کے دیکھ لیں، وہ پارٹی ختم ہو گئی۔ اس کے وجہ پرویز خٹک صاحب آئے، میں نے کہا جی کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ، آج ان کا نام و نشان بھی نہیں ہے۔ اور میں نے جیسے آپ سے عرض کیا تھا کہ ماضی میں خان صاحب کے ساتھ جو وزیر رہے، جن کا میں نے ذائچہ بنایا اور جنہیں میں نے کہا خان صاحب کو مت چھوڑنا، آپ دوبارہ ایک کونسلر بھی نہیں بنیں گے، کیونکہ آپ کے ذائچے میں جو صورتحال ہے وہ خان صاحب کے ذائچے کی وجہ سے آپ سٹرونگ ہیں۔ تو انہوں نے میری بات کو کچھ عرصہ تو سمجھا، پھر انہوں نے کہا نہیں یار کچھ بھی نہیں ہے، اب تو ساری باتیں جو ہیں نواز شریف صاحب آ رہے ہیں، ہم ان کے ساتھ ملیں گے اور ان کے ساتھ مل کے ہم اپنی جو ہے نا باتیں کریں گے۔ آج کدھر گیا نواز شریف صاحب؟ وہ خود الیکشن ہارے ہوئے فارم 47 لے کے پھر رہے ہیں، اور آپ نے ابھی دیکھا، میں نے ماضی میں عرض کیا کہ عدلیہ بہت سٹرونگ ہوگی اور عدلیہ بہت سٹرونگ فیصلے کرے گی۔ اب آپ دیکھیے جو ہی وہ برج دلوں میں پلوٹو آیا اور اس نے اپنی تمام تر طاقت دینی شروع کی اپنا مشتری کو، تو سب سے پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے باتیں آنا شروع ہوئیں، اور انہوں نے لوگوں کو یہ پیغام دیا کہ عدلیہ طاقتور ہے۔ اس کے بعد فیصلے آپ نے دیکھا پشاور ہائی کورٹ نے بھی دیے، لاہور ہائی کورٹ نے بھی دیے، اب سپریم کورٹ میں آپ نے دیکھا کہ کیا کرنے کی کوشش کی گئی اور کیا ہوا، کتنی بڑی پلاننگ، کتنی دیر سے فیلڈنگ سیٹ۔ آپ یہ دیکھیے کہ الیکشن کمیشن نے فارم 47 پہ لوگوں کو کر دیا کہ یہ ہے، وہ اب ٹرمینل میں پیش ہو رہے ہیں اور اپنے گھروں کو واپس جا رہے ہیں۔ جو ان کی سیٹیں بندر بانٹ کی گئی تھیں وہ واپس مل گئی ہیں۔ خان صاحب نے جیل میں رہ کے اس سسٹم کو اپ گریڈ کر دیا ہے، انہوں نے کہا اصل اس سسٹم میں یہ فالٹڈ ہے،
कई दफ़ा उन्हें कहा गया कि जनाब आप हमारे साथ डील कर लें, हम आपको वज़ीर आज़म बनाते हैं। वो कहा नहीं, मैं आवाम के उससे बनूंगा, मुझे किसी से डील करके नहीं आना। और यहाँ पे दोस्तों हमारा ये जो इल्म है, मैं यहाँ एक बात और बताता चलूँ कि जायचे में ये जो इल्म है एस्ट्रोलॉजी, ये बड़ा मुश्किल और दकीक इल्म है। एक वक्त लगता है इसको पढ़ने में, एक वक्त लगता है इसको सीखने में। लोग सो के उठते हैं और उन्हें वहम हो जाता है हमें इल्म आ गया, और उसके बाद वो जो सुनते हैं वो बातें करते हैं। मैं एक दफ़ा मशहूर साफ़ी हैं मज़हर बरलास साहब, उनके साथ प्रोग्राम में बैठा हुआ था। तो अभी इलेक्शन की डेट नहीं अनाउंस हुई, तो लोगों ने कहा जनाब मेरे साथ एक साहब थे, पता नहीं मुझे अब उनका नाम याद नहीं, अभी तो जी 2 साल इलेक्शन नहीं होंगे जी, 2 साल तो इलेक्शन का नाम। अब ये कहाँ से बातें सुनते हैं? और अगर आपको इल्म आता तो आप देखते कि इलेक्शन का पाकिस्तान के जायचे में इलेक्शन का घर कौन सा है, कहाँ से इलेक्शन आनी है। आपको तो अलफ बे भी नहीं आती, और आपको वहम हो जाता है बैठे बैठाए कि जी मुझे बड़ा इल्म आता है, मैं जो कहूँगा। अब जनाब दुनिया तबाह होने की सिमत में जा रही है, अब जनाब इमरान खान साहब का स्कोप ख़त्म हो गया है, ये रहेगा वो नहीं होगा। ये सारी बातें हैं, मतलब इन बेचारों को ना इल्म आता है ना बात करनी आती है। खैर इससे आगे चलते हैं। मैंने जब अर्ज़ किया था माजी में कि ये जो मरीख है और जो मुश्तरी है, इनके आपस में नहस नज़र हुई है, लिहाजा वो लोग जिन्होंने अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल किया, अपने ओहदे का गलत इस्तेमाल किया, वो अब भुगतेंगे। और उसमें सबसे पहला नतीजा आपको पता है कि ब्यूरोक्रेट्स जो हैं इस्लामाबाद के, वो भुगत रहे हैं और उनकी अपील भी रिजेक्ट होगी। अभी और लोग इस शिकंजे में आने हैं, क्योंकि जो आने वाला महीना है अगस्त, इस महीने में पहली बात यह है कि मरीख जो है वो अपना बुर्ज चेंज कर रहा है। और मरीख जो बुर्ज चेंज कर रहा है वो 21 तारीख को अपना बुर्ज चेंज कर जाए। 21 जुलाई 2024 को मरीख बुर्ज सौर से निकल के बुर्ज जौज़ा में आ जाएगा। और जो ही ये बुर्ज जौज़ा में पहुंचेगा तो पहली दफ़ा मैंने अर्ज़ किया कि यहाँ पे प्लूटो अपनी ताकत देगा। और जब यहाँ प्लूटो अपनी ताकत देगा, 100% प्लूटो अपनी ताकत देगा, तो अब सूरत हाल कुछ की कुछ होती जाएगी और ख़ान साहब का जायचा और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ये जो कह रहे हैं ना हम इसको जेल में रखेंगे, ये रख के दिखाएं। मतलब हमने भी अपना ज़िंदगी में वक्त नहीं ज़ाया किया, उस्तादों की जूतियाँ सीधी की हैं और उन्होंने हमें कमाल शौकत से इल्म सिखाया। लोग मुझे कॉल करते हैं, मुझे मैसेज करते हैं, तो मैं उन्हें एक ही दलील देता हूँ कि जनाब जो इन्होंने सज़ाएँ सुनाई थी वो किधर गईं, वो सज़ाएँ कहाँ गईं। और जजेस खड़े होना शुरू हुए। आप देखिए जो अदलिया स्ट्रॉन्ग हुई, पहले अपना जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट स्ट्रॉन्ग हुई, फिर लाहौर हाई कोर्ट, फिर पेशावर हाई कोर्ट, अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस भी खड़े हो गए। अब इन्होंने वो बड़ा कारकुर के कहा कि जनाब अब ये ट्रिब्यूनल हम जो है ख़त्म कर देंगे। और जिसने जो कोशिश की, जैसे मैंने आपसे अर्ज़ किया माजी में कि मुल्क की एक शख्सियत हैं जो इस वक्त मुश्किलात का शिकार हैं, अभी उनकी मुश्किलात ख़त्म नहीं हुई, वो समझते हैं ख़त्म होगी, ख़त्म नहीं हुई भाई, वो तो अभी आगे चल रही है, क्योंकि ज़ुहल जो है रिवर्स है। और ये जो ज़ुहल रिवर्स है, ये मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि मौजूदा वज़ीर आज़म साहब क्राइसिस में हैं। अब जो ही मरीख अपना बुर्ज चेंज करेगा और ये मुश्तरी और ज़ुहल की अब आने वाले वक्त में नहस नज़र होने वाली है थोड़े अरसे में, तो आप देखेंगे कोई एक केस खुलेगा और उस केस में मौजूदा वज़ीर आज़म साहब गुड बाय करते हुए घर जाएंगे। और ये जो बनी हुई है पंजाब हुकूमत, ये भी धड़म तख्ता होने वाली है। आज आप मेरी प्रेडिक्शन लिख लें, किसी भी टाइम जो ही ये मरीख ने अपना बुर्ज चेंज करना है, उसके बाद मरीख की और ज़ुहल की नहस नज़र होनी है। ये धड़म तख्ता होने लगा है पंजाब गवर्नमेंट का और मरकज़ वाली गवर्नमेंट का भी। दोस्तों मैंने अर्ज़ किया था मुल्क में एक तब्दीली का अमल चल रहा है। सियारगान ये बयान करते हैं कि तब्दीली का अमल चल रहा है, और ये जो तब्दीली का अमल है अभी ये चलता रहेगा, ये अभी बंद नहीं होने लगा। अभी तो इससे भी ज़्यादा तब्दीलियाँ मुल्क में आनी हैं, दुनिया में तब्दीलियाँ आनी हैं। मुल्क में क्या बात है, पूरी दुनिया में तब्दीलियाँ आनी हैं। खैर इमरान खान साहब की मैं अर्ज़ करता चलूँ कि उनके ज़ायचे पैदाइश के मुताबिक कोई मद्दे मुकाबल नहीं है दूर दूर तक। उन्होंने जेल में बैठ के भी साबित किया कि वो जो बात कहते हैं उसके ऊपर कायम रहते हैं। और मैंने माजी में अर्ज़ किया था कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब का ज़ायचा पैदाइश मेरे पास है, बल्कि जिस दिन वो वज़ीर आला बने, मेरी फेसबुक उठा के देखे, मैंने उसमें लगाया था कि रात 8 बजे के बाद, रात के जब 8 बजेंगे तो ये सितारे बता रहे हैं कि परवेज़ इलाही वज़ीर आला पंजाब बन जाएंगे, और वो एग्जैक्ट रात 8 बजे के बाद वज़ीर आला पंजाब डिक्लेयर हो गए। यहाँ
चौधरी साहब पे बड़े लोगों ने बातें की जी, चौधरी परवेज़ इलाही साहब साथ छोड़ जाएंगे जी, डील हो गई है जी, ऐसे हो गया जी, ख़ानदान का दबाव है, फ़लाँ है ढिमकाँ है। मैंने कहा था चौधरी परवेज़ इलाही साहब जिस बात पे खड़े होंगे वहाँ से कभी नहीं छोड़ेंगे। और आप देखिए कि जो चौधरी साहब हैं वो इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं। और मैं बहुत सारी बातें और भी कर सकता हूँ लेकिन वो किसी के जायचे की हैं, मैं इस वीलॉग में नहीं बता सकता, वो ज़ाती बातें हैं। लोग इस इल्म को समझते हैं कि ये इल्म मजाक है। वो भाई ये इल्म मजाक नहीं है, दुनिया का कदीम तरीन इल्म है। इंशाल्लाह मैं एक वीडियो मुस्तकबिल में बनाऊंगा जिसमें मैं तूफ़ान नूह के सितारे और तूफ़ान नूह के आमद के सितारे आपको बताऊंगा। कौन से सितारे किधर थे, वो ऐलान कर रहे थे तूफ़ान नूह आएगा, ये सितारे जब यहाँ पहुँचे तो तूफ़ान नूह आ गया। ये लोग इसको मजाक समझते हैं कि यार हमें सोए पड़े उठे, अब हमें इल्म आ गया। इस इल्म को जितना इन फुटपाथियों ने इन्होंने बदनाम किया है ना, उसकी मिसाल नहीं मिलती। अब इमरान खान साहब का जो जायचा है, मैंने अर्ज़ किया था कि इमरान खान साहब एक दिलेर आदमी हैं और उनके पहले खाने में मौजूद जो सितारा है मरीख, उसने उनको ताकतवर बनाया है। आप उनकी ज़रूरतमंदाना फ़ैसले देखें, कितनी दफ़ा उनको डील किया फ़िरौन ने। वो कहते हैं नहीं, ना मैं झुका हूँ ना मैं अपनी कौम को झुकने दूँगा। तो ये आने वाला वक्त इमरान खान साहब के लिए बहुत ज़्यादा कामयाबियाँ ला रहा है, क्योंकि उनका सितारा मैंने अर्ज़ किया था बसिमत बादशाह की खाने की सिमत में ट्रैवल कर रहा है। और इस दफ़ा मरीख अपनी ताकत उसे देगा मुश्तरी को, और प्लूटो यहाँ बैठा हुआ इन दोनों को अपनी ताकत दे देगा। और आगे आने वाले वक्त में जब ये ट्रायंगल्स शुरू होंगी बननी, तो सूरत और ख़ान साहब के हक़ में बेहतर होना शुरू हो जाएगी। तो इंशाल्लाह आने वाले वक्त में हम फिर कोई वीडियो के ऊपर बात करेंगे। सरेदस्त मैं यही कहूँगा कि अदलिया बहुत स्ट्रॉन्ग है, और ये जो अदलिया को धमकियाँ दे रहे हैं, 13 तारीख़ मेरे ख़्याल में इस धमकियों का रिज़ल्ट लेके आएगी। जायचा यही कह रहा है 13 अगस्त 2024। तो इंशाल्लाह फिर अगली वीडियो में बातें करेंगे।